क्योंकि टेम्पलेट बना के शूट कर दिया तो उससे कोई कन्वर्जन नहीं आएगा आपका, जब तक वो इफेक्टिव टेम्पलेट आप क्रिएट नहीं करेंगे इसके अंदर। तो अगर आप प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें आप फिल करना चाहिए। उसका एड्रेस पे आप फिल कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आप डालिए यहाँ पर। So, good morning, everyone. First of all, I'd like to invite you all in this webinar of the email marketing. Today, we are presenting this session. I am Rajesh Singh, your host, and the sessions will be taken by Mr. Sachin Chauhan, who will be the presenter of the email marketing masterclass. So, before we begin the session, first of all, I'd like to introduce about the Digital Edge Institute, what we are doing and how we are imparting training to the students. So Digital Institute is a premier digital marketing institute dedicated to shaping future-ready professionals. Renowned for its highest placement record, we offer comprehensive courses designed to equip students with cutting-edge skill in digital marketing. Our expert faculty, industry-focused curriculum, and real industry exposure ensures unmatched training quality and practical learning. At Digital Edge, our digital marketing curriculum is meticulously crafted to align with the global industry standards, ensuring top-tier education for our students. Our seasoned industry experts provide invaluable insights and mentorship, guiding students towards success. With strong industry tie-up, students gain real-world experience through internship, seamlessly bridging the gap between academia and the industry. Additionally, our dedicated placement cell works tirelessly to equip every student with the necessary tools and support to secure employment opportunity that match their aspirations and skill sets. Talking about the advantage of Digital Edge Institute, all the curriculum that we have designed is a standard as per the global industry standards. So our curriculum aligns with global industry standards, offering relevant and up-to-date education for aspiring professionals worldwide. It all means that after going through these courses, you can work anywhere in this world, because every country has a different marketing structure, different sociological structure, and need to be very specialized marketing strategy. All the trainers in the Digital Institute are very senior industry professionals, and you can get benefit from the guidance and mentorship provided by seasoned industry experts with extensive experience in digital marketing and practical knowledge. Live projects. Every student in our program gains practical exposure through immersive live projects, allowing you to develop confidence and proficiency in real-world scenario. And the real industry internship. Digital Edge, just before we begin this, I'd like to inform you that Digital Institute is a part of Triumph IT Services Private Limited, which is a full-fledged digital marketing and IT services company. So every student will get an opportunity to work on live projects and will get hands-on experience, first-hand experience about the projects, about the real life. They will be able to solve the real life problems. So every student gets a real industry internship in Digital Edge Institute. And the last but not the least, the guaranteed placement support. All the students who are enrolled in the Digital Edge courses, they get the guaranteed placement support. Our dedicated placement team work tirelessly to ensure that everyone gets the real or the proper interview opportunities and the placement interviews. Now, talking about the edge of the Digital Edge Institute, artificial intelligence. So talking about the artificial intelligence, it is not just limited to simply chat GPT or creating some content through AI or some image or doing the fundamental research. It's much more ahead than the basics of the AI, because nowadays in every sector, the AI is being used in for the very detailed market research and analysis. So without doing a proper marketing research analysis, you cannot create a better marketing strategy. So even same in the digital marketing, when you are planning some campaign or you're planning some marketing strategy, digital marketing strategy, you need to know the audience, you need to know the data. So we'll also train you on how to analyze data using the AI. And obviously the industry internship, real industry internship, as I mentioned, we are a part of the
full-fledged IT and digital marketing company. So every student will get an opportunity to get hands-on practice training on the real projects. Now, talking about how this program will help you. So if you are a fresher and looking to get a job in the industry, this is the right program. Whether you are looking for a your first job, or you are planning to switch your career from a different domain to this digital marketing domain, this is the right program, completely designed for you people. Or if you are a business owner and you are struggling with the revenue and want to increase your business revenue, so this program has also we have also considered the startups and the business owners on how to gain revenue, how to achieve revenue through a successful digital marketing strategy. Again, if you are a social media influencer or YouTuber and you are a good content creator, but you are not able to increase your followers or monetize an opportunity, in this program we train you on how to increase your followers of anybody when they are entering any kind of business. Again, if you are not from the set of people who want to work in a fixed structure and you want to work as a freelancer, this program has got you covered. We'll train you on how to get the projects from the freelancing sites and how to convince your customers. And end of the day, you will learn to secure projects from these websites and work as a freelancer. Again, we have designed this program for the people who are into the e-commerce business also. So e-commerce is altogether a different world. If I even talk about the Amazon has its own search engine optimization strategy. So like you are on e-commerce portal, but you are not able to list yourself on the top 10 or top 50. There is very less probability that your product will be sold. So in this program, we'll teach you on how to place yourself within top 10 or top 15, so that you gain buyers, and end of the day you increase your revenue. So if I talk about the entire program is designed in such a way that it will help from a very scratch, like to the fresher, to the business owner, to the social media YouTubers, social media influencers and YouTubers, and the e-commerce business owners also. Now, talking about the advantage, most of our programs are conducted in the live online session. We also have a physical classes, which we conduct at our Noida center in Sector 62. All the classes which are online will be live. Live like the classroom, and you will have the classroom feeling. You can discuss with your faculty, with your batchmates, like the normal classroom. And the advantage is that you don't have to relocate yourself or travel daily 2 to 3 hours and spend money to visit class. You can take the classes similarly like the normal physical classroom from the comfort of your home. And this will save your time, which you can invest in your learning. Right? So all the classes which will be live will be recorded also. And you will get the access of all those recordings, PPT notebooks on your 24/7 LMS, and which will be available for you, so that anytime you can go back and revise, which is not possible in physical class. If any class is missed or you don't understand any topic, you cannot revise those topics, and the trainer will not cover the entire topic for you in the next session. So it's always better to go for the live online session and with the recordings. Now, we'll give you training on the real tools, which is used in the digital marketing strategy. We'll train you on multiple tools which is being used in the digital marketing. And as I mentioned, the industry trainers, all the people training here have a very long experience in the industry of almost 10, 15 years of working experience. They have faced lots of challenges, lot of problems. So they will be able to guide you whenever you are stuck, whenever you face any challenge. And last but not the least, again, guaranteed placement support. So we'll give you the guaranteed placement support, and we are working with our students until they are placed. But if I talk about till now, we have placed more than 10,000 students in the industry, and they all are working at very good positions.
Talking about the digital marketing jobs in the market, as per the Naukri data, it's around 160,000 jobs available. And if I talk about the LinkedIn data, it's around 38,000 plus jobs are available. Talking about the salary, it's around 23 lakhs per annum for the content and marketing manager. And for the digital marketing manager, it's 18.5 lakhs per annum. And similarly for the SEO manager, it's around 16 lakhs per annum. And this is the data from the Ambition Box, which is one of the most authentic website if we talk about the salary data. Yeah, now talking about our parent company, the TriInfo IT Services. TriInfo IT Services brings over 12-year experience in delivering high-impact digital marketing solutions. As a Google Premier Partner, we have helped more than 7,000 clients globally, achieving a 97% of client retention rate. Our comprehensive services includes SEO, local SEO, social media marketing, PPC management, performance marketing, content and email marketing, website development, Google Ads management, and online reputation management. With a focus on customized strategy that drives growth and ROI, we offer tailored solutions designed to meet your unique business goals and deliver measurable results for a long-term success. Our advantage, we are 12-year plus old organization, and we are a Google Premier Partner company. We have more than 7,000 satisfied clients with 97% of client retention rate. We are present in different countries. We have office in India at Noida, Sector 62. And we also have an office in USA, in Chicago, and in UK at London. So we are working with multiple clients across the globe. So talking about experience, we have experience on multiple domains, working with multiple clients, and solving numerous problems in the industry. Talking about our services, search engine optimization, social media marketing, local SEO, PPC management, Google Ad management, website development, performance marketing, content management, email marketing, online reputation management. These are the few services that we are delivering to our candidates. This is about our services, and this is one of the advantage with our students also. Whenever any students enroll with us, they always get an opportunity to work on the projects that we are handling, and this is giving them the hands-on experience, because learning digital marketing is one thing, but the biggest problem is that when you encounter some issue, some problem, you don't know how to solve. So when you are learning with an organization, with some institutions backed up with a very renowned company, and they are having the real problems, real projects, so you will learn how to encounter those problems, how to solve these problems. So this was about the Digital Marketing Digital Edge Institute and the TriInfo IT Services Private Limited. And now I'd like to invite, before that, just first I'd like to let you know that towards end of the session, we'll have the Q&A session. And if you have any question, you can type in the chat box also. And or you can come on mic once you are allowed, and you can ask your questions. Meanwhile, if you want to contact us for any inquiry or admissions or the services, my team will share the details, contact details in the chat box. You could take it down, and you can contact us for any services. Yeah, now I'd like to invite Mr. Sachin Chauhan, who will be taking the session ahead about the email marketing. So, Mr. Sachin, welcome in the webinar. Please take the session ahead. Thank you, Mr. Rajesh Ji. Hi everyone, my name is Sachin Chauhan. I am a trainer at Digital Edge Institute. Today's masterclass is about email marketing. So I am sharing my screen. तो सबसे पहले आता है व्हाट वी विल टॉक अबाउट, आज क्या क्या हम कवर करेंगे इस मास्टर क्लास के अंदर. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, क्यों इम्पोर्टेंट है आपका ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस, डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग ईमेल्स, व्हाट इज लीड मैग्नेट, टाइप्स ऑफ लीड मैग्नेट, एंड लास्ट में फिर हम एक प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से हम यहाँ पर ईमेल कैंपेन जनरेट करते हैं, ईमेल कैंपेन हम बना सकते हैं. ठीक है,
एंड उसके बाद आता है Q&A सेशन। तो यहाँ पर आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है या आपने कभी इससे पहले भी ईमेल मार्केटिंग किया हुआ है या कुछ इश्यू आ रहे हैं आपको, तो वो आप क्वेश्चंस वगैरह आफ्टर मास्टर क्लास आप डिस्कस कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग क्या है? तो ईमेल मार्केटिंग इज द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग ईमेल्स टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो लीड जनरेशन करते हैं कि अगर आपको किसी भी आपका जो बिजनेस है, चाहे आईटी कंपनी है, चाहे आपका रियल एस्टेट है, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस है, तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। तो लीड जनरेट करते हैं आप, लीड्स क्या होती है? यूजर की इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, वो हमारी लीड्स होती है। तो ईमेल के थ्रू हम लीड जनरेशन करते हैं। आईटी कंपनी जितनी भी चल रही है सबसे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग से ही लीड जनरेशन करते हैं। दूसरा हमारा, अगर आपका प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा, उसकी बहुत सारे ईमेल शूट करते हैं, ठीक है। एंड ब्रांड अवेयरनेस होती है, आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को पता लगता है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव वे है आपका ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पर। एंड ये कॉस्टली भी नहीं है, आपका बहुत चीप प्राइस में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंसी ऑफ ईमेल मार्केटिंग, तो वो ईमेल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? तो फर्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि आप इसको एक चीप प्राइस में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेटा मिल जाता है, बहुत चीप प्राइस में आप डेटा परचेज भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेटा प्रोवाइड करती है आपकी। बाकी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जहाँ से हम डेटा वगैरह भी निकाल सकते हैं, लिंक्डइन भी है, इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स होती है जो एक प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग की मास्टर क्लास में बताया जाता है। या आप ऑफलाइन जैसे कोर्स वगैरह या ऑनलाइन करते हैं तो 1 वीक की ईमेल मार्केटिंग क्लास होती है, उसके अंदर प्रॉपर डेटा फ्री में निकालना ही बताता हूँ मैं कि हम फ्री में कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम बाय कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, चीप प्राइस में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लीड जनरेशन अगर आप करें तो आपको कोई कैंपेन रन नहीं करना गूगल एड्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पर डेली का बजट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप हजारों लाखों लोगों को मेल सेंड कर सकते हैं, वहां से आपके पास डायरेक्ट विजिट करते हैं और ईमेल्स आते हैं, आपके पास लीड्स आती है। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, आप ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं। आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता लगता है कि आपका एक न्यू ब्रांड है, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो आप ईमेल शूट करते हैं बहुत सारे लोगों को और हजारों लोगों को पता लगता है हाँ ये भी मार्केट में कोई ब्रांड है। इंक्रीज सेल्स, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर अलग अलग ईमेल कैंपेन बना सकते हैं और वहाँ पर लोगों को शूट कर सकते हैं ईमेल कैंपेन। तो वहाँ से आपकी सेल भी आती है, लोग डायरेक्ट क्लिक करते हैं, क्लिक करके वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पर हम लेकर जाते हैं उनको और वहाँ से हम ऑफर का मेल वगैरह लाइक 20% डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, होली डिस्काउंट या न्यू ईयर डिस्काउंट, इस टाइप की ईमेल कैंपेन बहुत सारे हम लोग शूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जन रेट काफी अच्छा निकलता है अगर आप ईमेल कैंपेन ऑफर वाले शूट कर रहे हैं तो, ठीक है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके फेस्टिवल्स के ऊपर या टाइमिंग के ऊपर कि आप किस टाइप का कैंपेन और किस टाइम आप सेंड कर रहे हैं। तो सेल भी इंक्रीज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। गेट इमीडिएट रिजल्ट्स, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स भी मिलता है। आपने शूट किया, आपको पता लग रहा है, आप ट्रैक कर सकते हैं डेटा की कितने यूजर्स ने ओपन किया, ओपन रेट क्या जा रहा है, बाउंस रेट क्या जा रहा है आपका, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं हमारे लिंक के ऊपर, जो भी आपने ईमेल का टेम्पलेट के अंदर लिंक शेयर किया हो तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं इसके अंदर। जनरेट लीड्स, आप लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम लीड्स की बात कर रहे थे कि ज्यादातर मेन फोकस जो रहता है जितनी बिजनेस वेबसाइट है उनका लीड्स रहता है कि हमें लीड जनरेट करना है। अब लीड्स जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, कैंपेन भी चला सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है आपके बहुत सारे। इसके अलावा एसईओ वगैरह करते हैं हम लोग लीड जनरेशन के लिए। तो अलग अलग टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जहाँ पर ईमेल बहुत पहले चलता हुआ है, आज भी ये जो है, तो ईमेल के थ्रू भी हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, देखो अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं या फिर आपके सेल्स जनरेट कर रहे हैं आप, तो ट्रैफिक भी आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उससे क्या हुआ, ट्रैफिक से आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, एसईओ में भी आपका इफेक्ट पड़ता है, रैंकिंग इंप्रूव होती है आपके। तो जो भी हम ईमेल शूट करते हैं किसी को भी, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने 10,000 लोगों मेल शूट किया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल ओपन नहीं करते, ओपन रेट भी बहुत कम रहता है इसके अंदर थोड़ा सा। तो ईमेल माने 10,000 में से अगर 1,000 लोगों ने भी ओपन किया या 2,000 लोगों ने भी ओपन किया इसके अंदर ईमेल को, तो आपका 2,000 में से मान लीजिए 500 लोग भी क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। तो आपका 500 का जो ट्रैफिक आ रहा है डायरेक्ट वो ईमेल्स के थ्रू आ रहा है आपका। तो यहाँ पर एसईओ में भी रैंक इंप्रूव हुई क्योंकि गूगल काउंट करता है, रेफरल ट्रैफिक भी काउंट करता है गूगल एसईओ में, तो आपका ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है ईमेल्स के थ्रू यहाँ पर। ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस, तो ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले आता है आपका डिफाइन योर ऑडियंस। देखो आप कोई भी
कैंपेन जब रन करते हैं, चाहे आप ईमेल कैंपेन रन कर रहे हैं या सोशल मीडिया कैंपेन रन कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है? तो आपको सबसे पहले एक ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा। आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं आपने या कर दिया है आपने, तो आपको पता हो कि मुझे किन लोगों को टारगेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी डेटा कलेक्ट किया या डेटा परचेज़ किया और उसके बाद आपने ईमेल शूट करना स्टार्ट कर दिया। कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा आपके पास, ठीक है? तो ये आपको पता हो कि मुझे ये एक ऑडियंस है मेरी, ठीक है? और उनको मुझे मेल सेंड करना है, उनका ही डेटा मुझे कलेक्ट करना है या बाय करना है, फ्री में निकालना है, जैसे भी जो भी प्रोसेस आप यूज़ करते हैं, तो उनको ही मुझे टारगेट करना है, ठीक है? तो ऑडियंस आपका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे किस टाइप के लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं, तो मैं उस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करूँगा, या मैं कॉलेज की ऑडियंस को टारगेट करूँगा, या मैं एमबीए वालों की ऑडियंस को टारगेट करूँगा, ठीक है? तो आप आईटी कंपनी है, तो आपको पता है कौन वेबसाइट बनवा सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुझसे बाय कर सकता है, ले सकता है, तो मैं उनको टारगेट करूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो आपकी ऑडियंस आपको पता हो, आप बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन-कौन लोग सर्च करते हैं, किस टाइप की ऑडियंस मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद आता है सेट योर गोल्स या मैट्रिक्स। आपको एक गोल भी सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ठीक है, अब आपने मेल आपके पास डेटा है और आपने मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मैं अगर 10,000 लोग मेल सेंड करता हूँ, तो उसमें से मेरे पास कितनी लीड्स आएँगी, कितने लोग कन्वर्ट होंगे मेरे। ठीक है, सेल्स में कितने लोग कन्वर्ट होंगे, लीड्स में कितने लोग कन्वर्ट होंगे। तो आपको एक गोल भी सेट करना होगा, ईमेल सेंड करते समय, ठीक है? कि मैं इतना तो मेरा गोल है कि मेरे 100 लोग तो कन्वर्जन आए मेरे पास, या 50 लोगों को कन्वर्जन आए, मेरा प्रोडक्ट तो सेल होने चाहिए आपके, ठीक है? तो वो जब ही होगा जब प्रॉपर आपका डेटा होगा। अगर डेटा ठीक नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, आप शूट करते जाइए, कोई फायदा नहीं होगा आपके मेल का, ठीक है? तो आप ये गोल सेट करिए। उसके बाद आता है फाइंड वे फॉर पीपल टू साइन अप। ठीक है, तो अलग-अलग तरीके हैं जहाँ पर हम लोगों से साइन अप करा सकते हैं, ईमेल कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? जहाँ पर आप एक इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अलग एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जिस पे लोग आएँगे और यहाँ पर साइन अप करेंगे और हमारे पास लीड्स आएगी, उनकी ईमेल आएगी। ईमेल कलेक्ट करने के लिए प्रोसेस होता है साइन अप फॉर्म का, ठीक है? उसके बाद है ईमेल कैंपेन टाइप। तो वो ईमेल में जब हम शूट करते हैं तो कैंपेन क्रिएट करते हैं उसके अंदर, जो आपको प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊँगा कि कैसे हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो ईमेल कैंपेन टाइप, किस टाइप का कैंपेन आप शूट कर रहे हैं अभी लोगों के लिए? तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने किसी को मेल शूट किया आज, मैंने 10,000 लोगों को मेल शूट किया। अब उसमें से ओपन रेट मान लीजिए मेरा 50% का ओपन रेट था या 40% का ओपन रेट था। 40 लोगों ने 100 में से 40 लोगों ने मेल को ओपन किया, बाकी 60 लोगों ने ओपन नहीं किया। ठीक है। अब नेक्स्ट कैंपेन क्या होगा? तो ईमेल में हम कैलेंडर भी क्रिएट करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के लिए, कि हमें कब-कब, किस-किस टाइम हमें मेल शूट करना है। एक टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका किस टाइम आप मेल शूट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जिन्होंने ओपन किया मेल को, अब उनको नेक्स्ट मेल क्या जाएगा? किस टाइप का कंटेंट मैं उनको सेंड करूँगा, ठीक है? क्योंकि ओपन तो क्या है, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जिन्होंने ओपन ही नहीं किया मेल को, तो उनको नेक्स्ट मेल मेरा क्या जाए। तो अलग-अलग टाइप्स के हम कैंपेन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वो एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, और पहले से बहुत सारे टेम्पलेट आपको क्रिएट करके रखना पड़ता है। ठीक है? तो अलग-अलग टाइप्स के आपको कैंपेन क्रिएट क्रिएट करने हैं। उसके बाद आता है आपका फायर मेल्स। इसमें हम क्या करते हैं, फिर आप जो भी आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है, अपना मेल बनाया है बहुत अच्छा से प्रॉपर से, उसको फिर हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं लोगों को, फायर कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है मेजर रिजल्ट्स। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा मेल वहाँ तक पहुँचा था या नहीं पहुँचा लोगों के पास, ठीक है? कितने लोगों ने क्लिक किया, कितना बाउंस हो गया, मतलब पहुँचा ही नहीं लोगों के पास, ठीक है? तो ये सारे हम रिजल्ट्स को चेक करते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखो आप जीमेल के अंदर नहीं कर सकते या अदर प्लेटफ़ॉर्म में नहीं कर सकते आप। इसके लिए बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, जिसके अंदर हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? तो फिर ये आपको बताया जाएगा आगे। तो ये ईमेल मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है, इसको फॉलो किया जाता है जब भी हम ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग ईमेल्स। तो ईमेल कैसे कलेक्ट करनी है आपको, कैसे कलेक्ट कर सकते हो आप ईमेल को। तो मैंने आपको बताया कि आप बाय कर सकते हैं डेटा, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल का डेटा प्रोवाइड करते हैं आपको, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ से आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन में या ईमेल मार्केटिंग के लिए लोग, बहुत सारे लोग लिंक्डइन का भी यूज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है आपका फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, वहाँ पर देखा होगा आपने, जितनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं या बिज़नेस वेबसाइट है, उसपे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है या पॉपअप टाइप का कुछ आ जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर।
ठीक है, जैसे आप विजिट करते हैं कुछ सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पर ईमेल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देता है वहाँ पर, ठीक है। तो हर मान लीजिए 10 यूजर्स ने विजिट किया, 10 में से 10 लोग ईमेल सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। उसमें 3 लोग 4 लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक प्रॉपर एक फॉर्म हो सकता है जिसमें आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, उसमें नेम भी हो सकता है, ईमेल आईडी भी हो सकती है और उसमें एड्रेस वगैरह भी हो सकता है, जो इंक्वायरी फॉर्म होता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ईमेल सब्सक्राइबर के बहुत सारा ऑप्शंस मिलते हैं या बने बनाए एचटीएमएल के फॉर्म आते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट है आपकी, तो हम लोग एक फॉर्म की ईमेल सब्सक्राइबर का एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर यूज़र आएगा, सब्सक्राइब करेगा और हमारे पास उसकी ईमेल्स आने कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस है, ये लोग करते ही हैं, ये कहीं पर साइड बार में भी लगाते हैं वेबसाइट के अंदर, पॉपअप भी हो सकता है, जो कुछ सेकंड के बाद यूजर्स को दिखेगा और फुटर वगैरह में भी ऑप्शन आता है। तो फुटर में भी ईमेल सब्सक्राइब कर सकता है कोई भी, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी ईमेल सब्सक्राइबर्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास। तो सोशल मीडिया पे हम फॉर्म वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों को। तो सोशल मीडिया में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सबसे ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। फेसबुक एड्स आ जाते हैं। फेसबुक एड्स के अंदर जैसे आप लीड्स कैंपेन रन करते हैं लीड जनरेशन के लिए, तो उसमें भी आपकी ईमेल कलेक्ट होती है। तो वहाँ पर आप फेसबुक एड्स रन करिए, बट वो पेड है, वो फ्री नहीं है। अभी जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे फ्री है। तो फेसबुक एड्स में आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके थ्रू भी आपके पास लीड्स आएँगी और उस ईमेल जितनी भी लीड्स आएँगी आपकी कलेक्ट करते हैं आप, उन पे फिर ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। गूगल एड्स आ जाता है आपका, गूगल एड्स के ऊपर भी आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी पेड मार्केटिंग आता है, कैंपेन रन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लीड्स के लिए। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं या ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पर हम मेल शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लीड मैग्नेट। एक लीड मैग्नेट भी कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। इसके थ्रू भी हम लोग ईमेल कलेक्ट करते हैं। तो लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट इज समथिंग ऑसम दैट यू गिव अवे फ्रॉम फॉर फ्री इन एक्सचेंज फॉर एन ईमेल एड्रेस। लीड मैग्नेट होता है कि आप किसी को फ्री में कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में आप उससे ईमेल ले रहे हैं या उसकी डिटेल्स ले रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप उससे, वो लीड मैग्नेट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लीड मैग्नेट कॉन्सेप्ट कि हम फ्री में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को और उसके बदले में ईमेल ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के लीड मैग्नेट होते हैं मार्केट के अंदर जो आप यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीड मैग्नेट, तो लीड मैग्नेट ई बुक्स हो सकता है, केस स्टडी है, फ्री ट्रायल्स है, फ्री कंसल्टेशन है और कूपन है। तो सबसे पहला था ई बुक्स। आपने देखा होगा कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ई बुक्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आप ई बुक्स ले कर सकते हैं एंड ई बुक्स जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं या डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पर एक इंक्वायरी फॉर्म आ जाता है। इंक्वायरी फॉर्म को जब तक आप फिल करते हैं उसमें नेम, आपका ईमेल एड्रेस, ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं होता, डिपेंड करता है किस टाइप की वेबसाइट है वो। तो उसमें कुछ डिटेल्स तो होती है, आपका ईमेल, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे ही आप सबमिट करते हैं डिटेल्स, वैसे ही डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है और ई बुक डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यूजर आपको क्या दे रहा है, वहाँ पर एडमिन आपको दे रहा है यूजर्स को फ्री बुक्स और आप उसको क्या दे रहे हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपके पास मेल आनी स्टार्ट हो जाती है फिर कि ठीक है आप ये पेड वर्जन भी ले सकते हैं या ई बुक्स कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। जो पूरा डेटा आपको पढ़ना है, देखना है, तो फिर उसके लिए आपको पेड प्लान पे जाना होगा। केस स्टडीज हो सकती हैं, अलग-अलग कंपनीज की केस स्टडीज हैं आपकी, ठीक है। तो उसको भी लोग शेयर करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, कैसे ग्रोथ किया था, उसकी केस स्टडी होगी, उसने क्या-क्या काम किया था अभी तक। तो वो लोग शेयर करते हैं फ्री फ्री ट्रायल्स और सैंपल्स। देखो इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्री ट्रायल्स और सैंपल्स का। यहाँ पर लोग फ्री ट्रायल्स देते हैं, सॉफ्टवेयर के देते हैं, टूल्स के फ्री ट्रायल्स देते हैं। आपके जैसे एग्जांपल के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग में है और यूज़ भी करते होंगे, जैसे सैमरश है या बहुत सारे टूल है, मौज है या अलग-अलग टाइप्स के टूल्स हैं। तो ये क्या देते हैं आपको, 1 वीक का फ्री ट्रायल्स दे रहे हैं या फिर 1 मंथ का फ्री ट्रायल्स दे रहे हैं आपके। ईमेल मार्केटिंग में भी टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, वही फ्री ट्रायल्स देते हैं 15 डेज़, 1 मंथ का। तो फ्री ट्रायल्स दे रहे हैं और फ्री ट्रायल्स ऐसे नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पर डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनके पास उनकी मेल आनी स्टार्ट हो जाती है कि आप ये पेड प्लान या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वाला प्लान परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा मेल सेंड करनी है या फिर और ज़्यादा आपको डिटेल्स या डेटा देखना है तो। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्री में देते हैं, उसके बदले में आपको
ईमेल्स मिल रही है, डेटा मिल रहा है, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आज की डेट में देखिए डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके पास डेटा है वही बादशाह है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री में किसी को कुछ बता सकते हैं, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं आप फ्री में, वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आपकी मैथ साइंस हो, या किसी भी सेक्टर में आप किसी लोगों को बता सकते हैं। कूपन्स देते हैं हम लोग फ्री में, तो कूपन्स का मतलब भी यही होता है, बहुत सारे लोग कूपन्स प्रोवाइड करते हैं, कूपन वाली वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी आपको मार्केट के अंदर। तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आप अकाउंट बनाते हैं या अपनी ईमेल देते हैं, अपना फोन नंबर देते हैं, तब आपको कूपन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो कूपन्स भी देते हैं आप लोग। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती हैं लीड मैग्नेट की। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको लीड जनरेट करनी है, आपको सिंपल आपको लीड कलेक्ट करनी है, सॉरी आपको ईमेल कलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि हमें प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का। अभी मैंने आपको सारा थ्योरी पार्ट बताया था कि ईमेल मार्केटिंग हम लोग की कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं यहाँ पर। एंड अभी मैं प्रैक्टिकल एक टूल के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे कैंपेन क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए देखिए बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आप मेलचिम्प है, एवेवर है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर, उनका आप यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूंगा मेलचिम्प, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्री आपको मिल जाएगा, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी इश्यू आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन शो हो रही होगी आप लोगों को। तो ये मेलचिम्प का एक डैशबोर्ड है, जहाँ पर हम एक मेल शूट करेंगे, ठीक है, इसमें एक कैंपेन क्रिएट करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी टूल का अगर आप यूज करते हैं मेल शूट करने के लिए, तो यहाँ पर 3 से 4 चीजें होती है इसके अंदर। ये आपको सबसे पहले एक ऑडियंस होना जरूरी है, आपके पास ऑडियंस मतलब आपके पास ईमेल का डेटा होना जरूरी है, ठीक है। तो किन लोगों को मेल सेंड करना है, आपके पास मेल का डेटा कलेक्ट हो आपकी एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद आता है आपका टेम्पलेट। देखो डिजाइन आपका जो टेम्पलेट है वो कितना आपने इफेक्टिव बनाया हुआ है, डिजाइन कैसा है आपका। जो जैसे आप लैंडिंग पेज आप बनाते हैं गूगल एड्स के लिए, वैसे यहाँ पर टेम्पलेट आपको डिजाइन करना है। वो एचटीएमएल फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो इसके अंदर मेलचिम्प में यही सारे जितने भी टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, इसमें भी ऑप्शन मिलता है आपको जहाँ पर टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं अपना। उसके बाद फिर हम उस टेम्पलेट को शूट करते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ए बी टेस्टिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज और भी हम लोग करते हैं जब हम लोग टेम्पलेट शूट करते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर ऑडियंस के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर ऑल कॉन्टैक्ट्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर देखिए अभी हमारे पास 2 कॉन्टैक्ट हैं, 2 ईमेल आईडी है इसके अंदर, जो हमने हमारी ऑडियंस है उसमें हमने 2 ईमेल आईडी क्रिएट किए हुए हैं। अगर मुझे और भी ईमेल आईडीज को यहाँ पर ऐड करना है, सब्सक्राइबर्स को ऐड करना है यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड कॉन्टैक्ट्स। इसमें 2 ऑप्शन है यहाँ पर, इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट और ऐड अ सिंगल सब्सक्राइबर, ठीक है। तो देखिए इंपोर्ट अगर आप करते हैं तो इंपोर्ट में आपकी एक्सेल शीट, सीएसवी फाइल या फिर आपकी नोट पैड वगैरह, या कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन देता है यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट, यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, मेरे पास बल्क में डेटा है 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का, तो मैं वन बाई वन तो कर ही नहीं सकता, कि कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा ना वहाँ पर बैठ कर मैं, ठीक है। तो मैं सीधे शीट अपलोड करूंगा, यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, वो डेटा मेरे यहाँ पर आ जाएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है, अगर बैक जाते हैं हम, ऐड अ सिंगल सब्सक्राइबर, इसमें आप एक वन बाई वन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं, बट ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की आप ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आप प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें आप फिल करना चाहिए, उसका एड्रेस पे आप फिल कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आप डालिए यहाँ पर, और ईमेल शेड्यूल वगैरह लगाना है, ऑटोमेटेड मैसेजिंग या ईमेल सेंड करना है, तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी एक टाइप कर देते हैं, जैसे लाइक मैंने अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप किया, एंड उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, फोन नंबर आ जाएगा उसका, बर्थडे वगैरह अगर बर्थडे पता है किसी का तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। और मार्केटिंग परमिशन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ऐड कॉन्टैक्ट। तो अभी हमारे पास 2 सब्सक्राइबर्स थे, एंड मैंने एक और सब्सक्राइबर ऐड किया, इसको हम करते हैं रिफ्रेश, ठीक है।
तो अभी हमारे पास 3 सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 2 थे, अब 1 और हो गया हमारे पास, ठीक है? तो इस तरीके से हम सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर या उसकी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं मेलचिम्प के अंदर, ठीक है? तो हमारे पास 3 सब्सक्राइबर्स हैं, अब मुझे 3 सब्सक्राइबर्स को मेल शूट करना है यहाँ पर, 3 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं और 3000 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास 3 सब्सक्राइबर्स हैं, उसके लिए मुझे एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका कंटेंट, ठीक है? ईमेल कंटेंट। ईमेल कंटेंट में आप जाएँगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल टेम्पलेट्स, ठीक है? अब टेम्पलेट देखिए, एक तो ऑप्शन इसका अपना आता है कि आप अपना भी टेम्पलेट एक इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपने पहले से कोई एचटीएमएल में टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, कि वो टेम्पलेट का फॉर्मेट होता है वो एचटीएमएल में होता है। तो आपने पहले से कोई एचटीएमएल टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एचटीएमएल टेम्पलेट अगर आपको यूज़ करना है तो आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, क्रिएट ईमेल टेम्पलेट। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे जो बने हुए हैं पहले से, उसको आप एडिट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज एक वेबसाइट जैसे बी फ्री, आप इस पे भी जाकर भी एक टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं अपना, ठीक है? एंड प्रॉपर इफेक्टिव देखिए, टेम्पलेट खाली डिजाइन करने से आपका ईमेल आने स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है? उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज भी करना होता है। तो प्रॉपर चीजें बताया भी जाता है कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कौन सा कंटेंट कहाँ पर होगा, आपका इंक्वायरी फॉर्म कहाँ पर होना चाहिए आपका, ठीक है? एंड आपका सीटीए बटन कहाँ पर होना चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन जिसपे आप क्लिक करते हैं, बाय नाउ, क्लिक हियर, ठीक है? सबमिट, ये कहाँ पर होना चाहिए आपके। तो ये इससे ही आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपने टेम्पलेट को, क्योंकि टेम्पलेट बना के शूट कर दिया तो उससे कोई कन्वर्जन नहीं आएगा आपका जब तक वो इफेक्टिव टेम्पलेट आप क्रिएट नहीं करेंगे इसके अंदर, तो ठीक है? तो आप यहाँ से भी एक टेम्पलेट बना सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये एचटीएमएल फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इस पे लैंडिंग पेज भी बनता है और आपका टेम्पलेट भी डिजाइन होता है, ठीक है? ईमेल के लिए। तो अभी हम यहाँ पर एक टेम्पलेट अगर डिजाइन करते हैं तो उसके एक ऑप्शन आ रहा है इसमें, क्रिएट टेम्पलेट। एंड इसमें आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्री और पेड टेम्पलेट दोनों होते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर फ्री वाला एक टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, फ्री टेम्पलेट ओनली। ये इसमें आपके फ्री टेम्पलेट्स हैं, सिंपल सा डिजाइन है आपका, इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट वाला जैसे टेम्पलेट सेलेक्ट किया, बोल्ड, अप्लाई। ये देखिए सिंपल सा है, इसमें एक टाइटल है, लोगो आप लगा सकते हैं, इमेज आप यूज कर सकते हैं, बटन, सोशल मीडिया आइकन्स, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी टेम्पलेट अगर प्रॉपर आपको डिजाइन करना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम लगेगा। इसके अंदर फिर आप प्रॉपर टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट देखिए 10 मिनट 15 मिनट में डिजाइन नहीं होता कभी भी। ये हमारा टेम्पलेट है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपका हेडिंग्स भी है, पैराग्राफ आप यूज कर सकते हैं, बटन यूज कर सकते हैं, लोगो लगाने हैं आप लोगो अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। और यहाँ पर कोड ऑप्शन भी है कि अगर मुझे देखिए कोड यूज करना है, एचटीएमएल का कोई कोड लगाना है उस टेम्पलेट के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अगर लोगो यूज करना है तो लोगो का ऑप्शन आ रहा है, सेट लोगो, और इसमें आप कोई भी एक लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास एक लोगो है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग की इमेज है, तो मैंने इसको लोगो में अपलोड किया है अभी इसको, ठीक है? ये सपोज एक मेरा लोगो है। उसके बाद आपके कुछ एक लाइन अगर आपको टाइप करना है, हेडलाइन टाइप करनी है, तो आप हेडलाइन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसकी जो सेटिंग्स आ रही है यहाँ पर, वो सेटिंग्स आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका साइज क्या रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, कलर क्या रखना है, कोड क्या होगा उसका, ठीक है? तो ये लाइन का कोड है। इसमें कुछ भी आपको कंटेंट टाइप करना है, तो मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली या नोएडा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक हेडलाइन चेंज किया। उसके बाद आता है आपका इमेज। तो मुझे अगर इमेज यूज नहीं करना है तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई इमेज यूज करनी है तो आप इमेज यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आप सिंपल है, यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इमेज हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकती है। उसके बाद आपका बटन आता है, जिसपे हम बात कर रहे थे, सीटीए बटन। तो सीटीए बटन में आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट रख सकते हैं आप कुछ भी, जैसे लाइक मैंने टाइप किया बाय नाउ, या क्लिक हियर, बाय नाउ, या मुझे सबमिट नाउ, या जो भी आप एक बटन है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बटन है, और इस बटन पे क्लिक करने के बाद यूजर को मुझे कहाँ लेकर जाना है, अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना है, लैंडिंग पेज पे लेकर जाना है, जहाँ पर तो वो लैंडिंग पेज का जो यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, https
abc.com, ये abc.com कोई वेबसाइट है, मैं उस पे लेकर जा सकता हूँ यूजर्स को, ठीक है। और लिंक अगर रिमूव करना है, मुझे कुछ नहीं लेकर जाना कहीं पर भी, तो मैं हटा भी सकता हूँ उसको, ठीक है। तो ये मैं बटन में टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स हैं, सोशल मीडिया आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, एंड उसमें अपना फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक टेम्पलेट डिजाइन करना है। टेम्पलेट डिजाइन करने से पहले आप देख लीजिए कि लोगों के टेम्पलेट कैसे हैं, या आपको गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो वहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उनका डिजाइन देखिए, या आपने कभी देखा हो मेल पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आते भी हैं आपके पास, तो उनको देखिए, उसके अकॉर्डिंग एक डिजाइन बनाइए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ए बी टेस्टिंग भी होता है। ए बी टेस्टिंग शायद आपको पता हो कि हम टेस्टिंग करके देखते हैं कि सपोज मैंने 100 लोगों को टेम्पलेट सेंड किया या 50 लोगों को टेम्पलेट सेंड किया, तो मैं फिर यहाँ पर देखता हूँ कि कितने लोग ओपन रेट क्या जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ए नाम का एक टेम्पलेट बनाया और उन 100 लोगों को मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। फिर मैं देखूंगा कितने लोगों ने ओपन किया, या 50% लोगों ने ओपन किया, 40% लोगों ने ओपन किया, तो फिर एक टेम्पलेट और क्रिएट करूंगा और वही सेम टेम्पलेट में 100 लोगों को और सेंड करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि ए वाले को ज्यादा ओपन कर रहे थे, ओपन रेट हाई जा रहा था, बी वाले पे जा रहा था, ठीक है। तो ये मैं चेक करूंगा, अगर बी वाला ज्यादा कर रहे हैं तो फिर मैं बी वाले को ही आगे नेक्स्ट जितने भी लोग हैं उनको सेंड करूंगा, ए वाले को नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो आप ए बी टेस्टिंग दे सकते हैं। अब ए बी टेस्टिंग में आप चेंज क्या करेंगे, ऐसा नहीं पूरा डिजाइन ही चेंज कर दिया आपने, वैसा नहीं करना है आपको। आप जैसे बटन है, बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, बटन का साइज चेंज कर सकते हैं। अभी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कर सकता हूँ, या मैं मिड सेंटर में रख सकता हूँ इसको, या मैं टॉप में रख सकता हूँ। इंक्वायरी फॉर्म, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो टेम्पलेट बनाते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं, इंक्वायरी फॉर्म, साइन अप फॉर्म, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, वो सबसे लास्ट में रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर पहुंच ही नहीं पा रहा है यहाँ तक। यूजर आया, यूजर आने और टॉप में आया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया उसने, उसके बाद इंक्वायरी फॉर्म तक वो पहुंचा ही नहीं वहां तक, ठीक है। तो आपके पास जाएंगे तो, या आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, या फिर आपके टेम्पलेट को विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो इंक्वायरीज नहीं आ रही है आपके पास, आपको, क्योंकि आपने इंक्वायरी फॉर्म सबसे लास्ट में लगा रखा है। तो अधिकतर आपने देखा होगा मोबाइल नंबर या फिर आपका जो साइन अप फॉर्म है, वो हम टॉप में रखते हैं या मिडिल में रखते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग नहीं रखते, या फिर आप दो रख लीजिए, ठीक है। एक और टॉप में भी रखिए, एक सबसे लास्ट में फुटर में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी इंक्वायरीज अच्छी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके फुटर तक नहीं जाते वहां पर, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, जिसकी वजह से आपके पास लीड्स नहीं आती, इंक्वायरीज नहीं आती है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हैं या ईमेल टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इमेज में हम चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इमेज का साइज चेंज कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करते हैं हम ए बी टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये ए बी टेस्टिंग एक प्रॉपर क्लास भी होती है इसकी, अलग से मैं बताता हूँ, जहाँ पर प्रॉपर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ए बी टेस्टिंग पे हम बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, ईमेल टेम्पलेट कैसे हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट डिजाइन करना है, उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। तो फिर इसको हम सेव करते हैं अभी। अभी हमने नेम कुछ नहीं दिया, अनटाइटल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा एक टेम्पलेट है ईमेल का, एंड इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करना है एज एचटीएमएल, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया। मेरे पास 3 सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मुझे मेल सेंड करना है। एक ईमेल का टेम्पलेट है हमारे पास, वो ईमेल का टेम्पलेट उन 3 लोगों को मुझे सेंड करना है। अब आते हैं कैंपेन के ऊपर, जिसको यहाँ पर मुझे शूट करना है इस टेम्पलेट को, ठीक है। तो कैंपेन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका, कैंपेन, ऑल कैंपेन्स। इसमें आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन। रेगुलर ईमेल ऑटोमेशन भी है, जब प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग हम लोग क्लास करते हैं तो ऑटोमेशन भी बताता हूँ, ईमेल ऑटोमेशन कैसे काम करता है। ईमेल ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आज के डेट में, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मली कैंपेन क्रिएट करें, तो रेगुलर ईमेल पर हम क्लिक करेंगे। देखिए इसके अंदर आता है सबसे पहले आपका, हम किसको मेल भेज रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 3 है सब्सक्राइबर जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैंने मान लीजिए 2 लिस्ट बना रखी है, अलग अलग ऑडियंस बना रखी है। फ्री वाले प्लान में अलग अलग ऑडियंस का ऑप्शन नहीं देगा, अगर आप पेड प्लान लेते हैं, आप मेलचिम का किसी टूल का, तो अलग अलग ऑडियंस भी बना सकते हैं। कि जैसे फर्स्ट ऑडियंस है मैंने 5 लोग ऐड किया हुआ है, सेकंड ऑडियंस मैंने बना के उसमें 2000 लोग ऐड किया। तो किस ऑडियंस को आपको मेल सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम, तो इस ईमेल आईडी से जाएगा मेल उन लोगों को। सब्जेक्ट लाइन आता है, देखिए सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसको, सब्जेक्ट लाइन देखने के बाद ही ऑडियंस आपकी ओपन करती है मेल को।
आपने देखा होगा आपके पास जो मेल आती है, आप जैसे ही सब्जेक्ट लाइन पढ़ते हैं, आप डिलीट मार देते हैं उसको, ठीक है? या ट्रैश में डाल देते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन एक इफेक्टिव, अट्रैक्टिव सी सब्जेक्ट लाइन होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट लाइन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, तो लोग ओपन नहीं करेंगे, ठीक है? तो ओपन नहीं करेंगे, तो वो टेम्पलेट बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर आपका। आपके टेम्पलेट तक तो पहुँचेगा ही नहीं जब ओपन नहीं कर रहा होगा। तो ओपन रेट अगर हाई रखना है आपको, तो आपके सब्जेक्ट लाइन को इफेक्टिव होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है? तो सब्जेक्ट लाइन एक्चुअली अलग-अलग कैरेक्टर्स की होती है कि आप कितने कैरेक्टर्स की इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन होगी, ठीक है? तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट लाइन की, तो आपकी 36 से 48 कैरेक्टर्स की जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो ओके में आती है। 25 से 35 कैरेक्टर्स होते हैं आपकी जो गुड मानी जाती है, और 17 से 24 कैरेक्टर्स होती है आपकी वो बेस्ट होती है। ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें सब्जेक्ट लाइन आप कितनी अट्रैक्टिव सी आई कैची सब्जेक्ट लाइन बनाते हो, कितने कैरेक्टर्स की आप लोग क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट लाइन, ठीक है? तो अभी बेसिकली मैं सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ऐड सब्जेक्ट लाइन, लाइक मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है? सेव। तो हमारे पास सब्जेक्ट लाइन भी हो गया, उसके बाद आता है कंटेंट। अब आपको कंटेंट सेलेक्ट करना है कि आप इन लोगों को कौन-सा कंटेंट आप सेंड करेंगे, ठीक है? तो फिर यहाँ पर हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आप, डिज़ाइन ईमेल, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव टेम्पलेट, जो हमने सेव किए थे टेम्पलेट्स अभी इससे पहले भी, वो यहाँ पर सेव टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये 2 टेम्पलेट्स हैं, इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला टेम्पलेट अप्लाई किया, अभी भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना है इस टेम्पलेट के अंदर तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो आप चेंजेस कीजिए, उसके बाद सेव एंड एग्जिट कर दो। सेंड टेस्ट टेस्ट आप चेक करके भी देख सकते हैं, सेंड होगा नहीं होगा, कैसा दिखेगा, प्रीव्यू आपका देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने सेव किया और एग्जिट किया, ठीक है? तो कुछ यहाँ पर दे रहा है, प्लेस होल्डर में एरर दे रहा है, टू सेंड योर रिमूव और रिप्लेस द प्लेस होल्डर, ठीक है? कुछ चीजें अभी हम इमेज वगैरह भी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा वो। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं कंटेंट को। हुँ, तो अभी डमी कंटेंट था, उसकी वजह से इश्यू कर रहा था वो वहाँ पर। तो अभी मैंने रिमूव कर दिया है वो कंटेंट, एंड उसके बाद हमारा लोगो, एक छोटी-सी हेडलाइन यहाँ पर शो हो रही है। इमेज हमने यूज़ नहीं की है कोई भी, तो ब्लैंक आ रहा है, बाकी बाय नाउ का एक बटन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये सब कुछ अभी रेडी है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, कुछ एरर होती है तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो एरर आती है वो टेम्पलेट के अंदर ज़्यादा आती है, जो डिज़ाइन करते हैं आप एचटीएमएल में, तो उसको आप फिक्स करिए, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है आपका फिनिश लेटर कि अब मुझे बाद में सेंड करना है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद अगर मुझे सेंड करना है अभी, तो मैं यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आ रहा है और ये आपका सेंड हो जाएगा, सेंड नाउ, ठीक है? तो अभी हमारा टेम्पलेट सेंड हो गया है। थोड़ा-सा टाइम लेता है ये पहुँचने में, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करना शुरू कर देते हैं कि अभी सेंड हुआ है, अभी एकदम तुरंत उनको नहीं मिला, ठीक है? इंस्टेंट नहीं मिलता। तो थोड़ा-सा कुछ मिनट का भी टाइम डिफरेंस आ जाता है, जब आपका सेंड होता है और आपके इनबॉक्स में या जो भी है आपकी सब्सक्राइबर वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है? तो इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो सेंड किए हैं, जिन लोगों को मेल भेजा है, उन्होंने ओपन किया नहीं किया है, या उनके पास पहुँचा नहीं पहुँचा। ये सारा डेटा भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि जीमेल में आपको नहीं मिलता, ठीक है? तो अगर कैंपेन पे जाते हैं, ऑल कैंपेन्स के अंदर, ठीक है? तो इसमें आप रिपोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक सेंड किया था और ये अभी सेंडिंग में दिखा रहा है, अभी सेंड हुआ नहीं है, लेकिन कुछ मिनट के अंदर ये सेंड हो जाएगा। जैसे ये एक टेम्पलेट है जो मैंने सेंड किया था अभी, और यहाँ पर दिखा रहा है ये सेंड हो गया है। इसका अगर मुझे रिपोर्ट देखनी है, व्यू रिपोर्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक क्लिक करूँगा व्यू रिपोर्ट पे, ठीक है? तो फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि ओपन कितने लोगों ने किया, तो एक ओपन हुआ है, एक आदमी ने ओपन किया है इसको, बाकी अभी ओपन नहीं किया है। कितना क्लिक हुआ, कितना बाउंस हुआ है मेल आपका, ठीक है? तो बाउंस रेट भी आपको दिखाता है, कितना परसेंट लोगों ने बाउंस बाउंस मतलब पहुँचा ही नहीं मेल, ठीक है? मतलब आपने मेल तो शूट किया, उसमें से 50 लोग ऐसे थे या 100 लोग ऐसे थे जहाँ तक उनको मेल ही नहीं पहुँचा, ठीक है? तो बाउंस रेट देखिए 2 हो सकते हैं, या तो सर्वर इश्यू हो सकता है, हार्ड बाउंस और सॉफ्ट बाउंस, या सर्वर इश्यू हो सकता है, या फिर ईमेल एड्रेस ही रॉन्ग था आपका, ठीक है? तो ये 2 इश्यू हो सकते हैं बाउंस रेट के अंदर आपके। तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है डेटा, एंड इसके अंदर और भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं,
ठीक है। अगर हम मेलचिम की बात करें, इसमें सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। गूगल एड्स रीमार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप प्रॉपर अपनी मेलचिम को और अपनी वेबसाइट को आपस में एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट पे जितनी भी इंक्वायरी आ रही है, डेटा आ रहा है, वो सब मेलचिम की ऑडियंस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका। तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है मेलचिम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर जब हम लोग क्लास करते हैं 1 वीक की ईमेल मार्केटिंग, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग, किस टाइप से ईमेल का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, और किस टाइप से हम लोग यहाँ पर ईमेल शूट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग में, किसी भी कैंपेन के थ्रू या किसी भी टूल्स के थ्रू यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर होगा ईमेल मार्केटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज की मास्टर क्लास में इतना ही है। एंड आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, अभी आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स ओपन है आपका, आप उसमें क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू। किसी की कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो मुझसे डिस्कस कर Yeah, सकते हैं चैट बॉक्स yeah, ओपन। thank you, Sachin. So now you can ask your question. You can write the question up chat box में question लिख सकते हैं, or you can ask a question. Yeah, Sachin, you can take the question from Dipti. There is a question. दीप्ति देसाई, सर हाउ कैन वी इंक्लूड इफेक्टिव सीटीए इन द ईमेल। देखो सीटीए कॉल टू एक्शन जो बटन आप यूज करते हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव देखो साइज, कलर एंड पोजीशन, तो 3 से 4 चीजें होती हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि आप किस जगह प्लेस कर रहे हैं आप सीटीए बटन को, और कितने सीटीए बटन आप यूज कर रहे हैं। कभी कभी लोग 2 या 3 सीटीए बटन भी यूज करते हैं यहाँ पर ईमेल के अंदर। तो वो इफेक्टिव जब ही होगा जब आपका प्लेस उसका कि कहाँ किस पोजीशन पे आप यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, एंड उसका साइज और उसका आपका कलर और फॉन्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको नोटिस करना है इफेक्टिव सीटीआर, ठीक है। फिर उसको ऑब्जर्व भी करना है, ऐसा नहीं है आपने लगा दिया फिर आप ये देखिए क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम सीटीए बटन को ट्रैक करते हैं, उसमें इवेंट भी हम लोग देखते हैं कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, आ तो रहे हैं आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर, बट क्लिक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट क्रिएशन आपको शायद नहीं पता हो, इवेंट क्रिएशन गूगल एनालिटिक्स के अंदर, तो वो प्रॉपर जैसे गूगल एनालिटिक्स की क्लास होती है हम लोग करते हैं, तो उसमें इवेंट क्रिएट करना हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर इवेंट के थ्रू हम ट्रैक करते हैं बटन पे कितना क्लिक्स हो रहा है। तो सीटीए बटन यूज करना एंड प्लस उसको ट्रैक करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हिमांशु। हिमांशु पूछ रहे हैं अगर हम मेल सेंड कर रहे हैं मेलचिम के थ्रू तो ईमेल मेलचिम की जाएगी या फिर जीमेल की जाएगी, ठीक है। तो वो मेल तो जीमेल की जाएगी आपकी जो भी यूज करेंगे आप, ठीक है। तो फ्रॉम में आता है जहां पर आप मेल कोई भी यूज करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मेल है वो जीमेल की जाती है इसके अंदर। Sachin has raised hand. Sachin, can you just ask your question? तो आपका क्वेश्चन था कि कैन वी डू कोल्ड आउटरीच इन दिस टूल, ओके। देखिए कर सकते हैं, आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपका सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप टारगेट कर सकते हैं इसमें भी। मोनिका बजट डेली बेस्ड पे कितना, देखो बजट इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम ईमेल आपको टूल परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, उसका प्राइस आएगा मंथली, बाकी वैसे बजट कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। Dipti का question है is mail free मेल software. जिम फ्री सॉफ्टवेयर, देखो मेल जिम कुछ टाइम के लिए फ्री है एंड कुछ ऑडियंस इसके अंदर फ्री मिलेगी आपको, जैसे लाइक आपकी 500 कॉन्टैक्ट्स और आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो फिर वो आपका पेड है, मतलब आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 500 कॉन्टैक्ट से ज्यादा जाते हैं, पहले 2000 होता था, अभी वो नहीं है यहाँ पर। तो हर टूल के अंदर आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस मिलती है, टेम्पलेट फ्री आपको कुछ मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, बाकी फिर आपको पेड टेम्पलेट्स पे जाना होगा आपको। Dipti का question है are there any alternative we can use in place of Mailchimp? हाँ देखो बहुत सारे टूल्स हैं आपके, अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, ए वेवर है, ठीक है, ए वेवर का यूज कर सकते हैं, बट मेलचिम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप मेलचिम का यूज करिए, मेलचिम इफेक्टिव टूल है आपका। तो आप ए वेवर पे जाना है तो ए वेवर भी यूज होता है आपका, ठीक है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। बाकी वैसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
what are the charges of Mailchimp? We have to take a subscription. वो चार्जेस आपको देखना पड़ेगा, चार्जेस देखिए चेंज भी होते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे जाएंगे मेलचिम के अंदर, तो वहाँ पर प्राइस लिस्ट मिल जाएगी आपको मेलचिम की, तो यहाँ पर आप चार्जेस देख सकते हैं। ठीक है, वो जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी आपको, क्या क्या मंथली प्लान है, ईयरली प्लान क्या है, तो आप सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं प्राइसिंग उसकी। मिनिमम इंडिया के अंदर हम बात करें तो 575 500-600 रुपये आपका लगभग जाता है, जिसमें 500 कॉन्टैक्ट्स या उस टाइप से कुछ लिस्ट आपको मिलती है, कितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस दीप्ति, this is can you brief us more on the report analysis of the campaign as in what to provide inside me? देखो, रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें दीप्ति, तो जब तक रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आई, जब तक आप कोई मेल शूट नहीं करेंगे और जब तक आपकी मेल को ओपन नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो रिपोर्ट में हम लोग चेक करते हैं, जैसे ओपन रेट क्या जा रहा है, ठीक है, यूजर्स कितना लोग मेल को ओपन कर रहे हैं, आपका इनसाइड द क्लिक कितना कर रहे हैं आपके मेल के अंदर, ठीक, तो हम क्लिक रेट भी चेक करते हैं कि मेल के अंदर ओपन तो किया है, बट उन्होंने कितने लोगों ने इस मेल पर क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है, सीटीए बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, तो ये सारा हम ओपन रेट, क्लिक रेट, आपका बाउंस रेट यहाँ पर, ये सब कुछ हम लोग चेक करते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है आपकी, ठीक है, तो हम और भी बहुत सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो। बाकी आप ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर अगर कोर्स करना चाहते हैं तो ईमेल मार्केटिंग का जो 1 वीक की क्लास होती है, ठीक है, 10 डेज की लगभग, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर आपको ईमेल उसमें 2 से 3 टूल्स के ऊपर काम करने बताया जाता है, प्रॉपर ईमेल टेम्पलेट, लैंडिंग पेज कैसे करना है, मेल शूट कैसे करना है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि जहाँ पर आप मेल लीड जनरेशन कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। एंड किसी को कुछ भी इश्यू आ रहा है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से, मैं भी कनेक्ट रहता हूँ उस टीम के साथ, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। So, if you want to have any more query, you can contact us on the given number, and our team will. If you want to like ask Sachin also about anything, you can contact our team, and we'll arrange personalized guidance for you people also. If you have any query, you will contact us. So I think there is no question. There is one question, sir. How can we get certificate? You will get the certificate on your mail ID that you have provided in the registration form. So we'll send the certificates of attending the master class. Everyone will get the certificate of attending. I hope there is no question from your side. So yeah, so I think there is no question. So we'll conclude the session today, and we'll be continuing the more sessions on the different topics. Stay connected, and if you want to have any training from us, you can contact us. If you are a business owner or looking for services from the Tri-Info IT services, you can again contact our team, and we'll try to help you out with your problems or the training issues or the marketing issue problems. Thank you so much for coming and joining the webinar. Have a nice Sunday ahead. Thank you. Thank you, Sachin, for presenting this. Thank you all. Thank you, everyone. Rajesh. Yeah, thank you all. Thank you for coming. all. अगर सारे लोग एक जैसा ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, या सारे लोग एक जैसा लैंडिंग पेज दिखा रहे हैं यूजर्स को, तो कोई फायदा नहीं है आपके ऐड रन करने का। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले